جی شاہ صاحب، جی جی ہاں آپ مائک سنبھالیں اور کار بھی آگے بڑھائیں۔ ایک منٹ، یا ہمارے پاس شعراء جو موجود ہیں، یہ ٹیکنالوجی میں بسا اوقات یہ پرابلمز ہوتے ہیں۔ ہم پروگرام کے آغاز میں ہی اس چیز کی معذرت کر جی جی لیتے ہیں کہ بسا اوقات کبھی ڈسکنیکشنز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں ایک جو سب سے بڑی برائی ہے وہ یہ ہے کہ حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا جا سکتا۔ تو بہرحال جی میں اس کو جی جی شاہ جی، آپ آپ بات مکمل فرمائیں۔ کر لیں۔ جی آپ مکمل کر لیں تو وہ پھر میں آگے بڑھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سوری۔ جی میری بات مکمل ہو چکی ہے، میں تو اچھا وقت ٹھیک ہے۔ گزاری کے لیے یہ اچھا بات ایسا کر ہے رہا کہ تھا۔ میں اس سے پہلے کہ مشاعرے کو باقاعدہ اور آگے کی طرف لے چلیں، ہم معذرت خواہ ہیں تمام مہمانوں سے بھی کہ یہ کچھ مسائل ہو جاتے ہیں ٹیکنیکلی، آپ سمجھ رہے ہیں، اور آپ سب جتنے بھی ہیں وہ آپ سب بھی آن لائن مشاعروں میں جب شرکت فرماتے ہیں کہیں نہ کہیں ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ فزیکل مشاعرے ہوتے ہیں تو وہاں تو سب ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن ایسے مشاعروں میں یا تقاریب میں مسائل آ جاتے ہیں۔ ہمارے اس مشاعرے میں ہمارے ایک اور محترم دوست سید فرت عباس شاہ صاحب بھی شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ کی مصروفیات کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اپنا خصوصی کلام ویڈیو ریکارڈ کر کے ایمرجنسی میں ہمیں بھیجا ہے، تو میں صدر مشاعرہ کی اجازت سے فرت عباس شاہ صاحب کی ویڈیو چلانا چاہتا ہوں۔ آپ کا مائک بند ہے۔ جی ضرور چلائیے جی، صدر صاحب کا مائک ذرا بند ہے، آپ ہاں اس ٹھیک ہے دوران ان کا کلام چلا دیجیے۔ جی، آپ مجھے بتا دیجیے گا جب سب چیز نظر آ رہی ہو تو ٹھیک ہے۔ جی جی ارشاد کریں۔ جی فرحت عباس شاہ صاحب کا پیغام، کیونکہ وہ کچھ اپنی پیشہ ورانہ جی مجبوریوں کی وجہ جی سے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، سنائیے۔ جی سر سنا رہے ہیں شاہ جی، یہ نظر آ رہا ہے سب؟ جی بالکل نظر آ رہا ہے جی۔ اور ساؤنڈ بھی آ رہا ہے تو ایک دفعہ مجھے بتا دیجیے گا جیسی ساؤنڈ آ رہا ہے تو۔ شاہ جی نئی دکھائی دے کتاب رہے آئی ہیں؟ ہے کچھ 17-18 سال بعد۔ جی آ رہا ایک ہے جی۔ سیکنڈ، نئی کتاب ایک آئی سیکنڈ، ہے ایک کچھ سیکنڈ، ایک سیکنڈ۔ 17-18۔ ہاں جی شاہ جی، آپ ایک منٹ بات کیجیے، میں اتنی دیر میں آپ کو جو ہے نا یہ دوبارہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں، آپ جب تک بات جی جی کرتے رہیں۔ بالکل، میں ایک اپنے والد صاحب فاروق بخاری صاحب کا جی ایک جی جی شعر آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، بلکہ دو اشعار۔ عقیدت کا شجر ہے سال خوردہ، عقیدت کا شجر ہے سال خوردہ، مگر یہ پھولتا پھلتا بہت ہے۔ واہ، واہ، عقیدت کا شجر ہے نئی سال کتاب آئی خوردہ، ہے 17-18 سال بعد۔ مگر یہ پھولتا پھلتا بہت ہے۔ فقیہ شہر کا سکہ ہے کھوٹا، مگر اس شہر میں چلتا بہت ہے۔ چلتا واہ بہت ہے، واہ بس ہاں واہ، ہاں ہاں ہاں۔ کیا استادانہ رنگ ہے۔ واہ، یہ تو جی جی شاہ جی، دائم آپ جاری رکھیں، جاری رکھیں۔ دائم ایک دائمی شاہ حقیقت جی، بیان کرتی ہے۔ شاہ جی لائیو ابھی جوائن کر رہے ہیں؟ جی ان کو وہ سیٹنگ کر رہے ہیں، اس دوران اچھا، فارغ صاحب کا ایک السلام اور علیکم شعر آپ مرشد، کو۔ بہت شکریہ۔ جی میرا یہ ہو گیا ہے، میں ابھی آپ لوگوں کو ہم ہماتن گوشی۔ جی جناب، اب میں فرحت عباس شاہ صاحب کا وہ چلا رہا ہوں۔ ہاں جی، اب نظر آ رہا ہے؟ جی 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 آگے نا۔ السلام علیکم مرشد، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، پیار کا۔ اور بس رات ارشاد بھی کریں شاہ کچھ صاحب۔ مصروفیات بھی رہی، میں کچھ آن لائن کلاسز کرواتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تو وہ اس کی بھی مجبوری ہوتی ہے، اور کوئی مہمان آ گیا، کوئی اور دیگر سلسلے کوئی، تو پھر بھی میں رات نہیں کر پایا، تو صبح میں نے آپ کو یہ کر دی ویڈیو۔ میں نے کہا سید بادشاہ کے حکم کی تعمیل بڑی ضروری ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ یہ اس دور میں بھی آپ جو لوگ بھی نظریاتی ہیں، چیدہ رہ گئے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ یہ واقعی حقیقتاً اتنی گہری تاریکی میں چراغ جلانے والی بات ہے۔ اور میں اپنے طور پہ جو میں نے کوشش کی ہے کہ 42 سال کی شعری ریاضت کے بعد میرے جو خیالات کہیں جستہ میری کتابوں میں آتے تھے یہ نظریاتی، تو اس میں نے اب عہد کو بھی دیکھتے ہوئے اور ضرورت کو بھی دیکھتے ہوئے میں یہ کتاب جو میری آئی ہے مزاحمت کریں گے ہم، تو سارا جو ہوتا ہے نا جی کہ ریاضت کا ثمر سمجھ لیں، نچوڑ سمجھ لیں، یا سوچ میری یہ تھی کہ میں یہ حق ادا کر جاؤں اور ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں بات کر جاؤں اپنی زندگی میں۔ تو میرا تو کنٹریبیوشن یہی ہے جو میں نے کر دیا، ایک شاعر کو کرنا بھی یہی چاہیے۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ اب آگے لوگوں پہ ہے کہ وہ اس کتاب کو یا میری شاعری کو سمجھیں، پڑھیں، دیکھیں، کسی قابل سمجھیں نہ سمجھیں۔ میں نے اپنے طور پہ جو ایک وہ چڑیا کی چونچ میں پانی بھر کے آگ بجھانے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہونے والا میں نے اپنا حصہ یہ ڈال دیا کہ چلو میرا نام تو آئے ان میں بھی ایک قطرہ پانی کا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میری یہی کنٹریبیوشن سمجھے اور میں نے تو اس میں کر دیا۔ اور باقی انشاءاللہ کبھی ملاقات بھی ہوگی، کبھی میں پشاور آیا تو ضرور ملاقات بھی رہے گی، اور جناب سے دعاؤں کی التماس تو ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ آپ کو سکھی رکھے، سلامت رکھے۔ نئی کتاب آئی ہے کچھ 17-18 سال بعد، مزاحمت کریں گے ہم، اس میں سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ جسے نہ صبح کا غم ہے نہ کوئی شام کا دکھ، جسے نہ صبح کا غم ہے نہ کوئی شام کا دکھ، سمجھ سکے گا وہ کیسے میری عوام کا دکھ۔ تمہارا درد ہے کرسی، بہت اچھا۔ تمہارا غم پیسہ، تمہارا درد ہے کرسی، تمہارا غم پیسہ، تمہیں تو چھو کے نہیں گزرا کوئی کام کا دکھ۔ تجھے پتا ہے کہ میں کس طرح سے جی رہا ہوں، تمہیں پتا ہے کہ میں کس طرح سے جی رہا ہوں، حضور روٹی تو پہلا ہے مجھ غلام کا دکھ۔ تو مجھ پہ ظلم کی تاریخ کر رہا ہے رقم، تو مجھ پہ ظلم کی تاریخ کر رہا ہے رقم، میں تیرے کتبے پہ لکھوں گا اپنے نام کا دکھ۔ تو میری جیب سے دیتا ہے سود قرضوں کا، تو میری جیب سے دیتا ہے سود قرضوں کا، تو میری جیب سے دیتا ہے سود قرضوں کا، جنہوں نے لوٹا ہے ان کو نہیں ہے عام کا دکھ۔ میں تجھ کو چرکے لگاؤں گا اپنے شعروں سے، میں تجھ کو چرکے لگاؤں گا اپنے شعروں سے، تجھے پہنچتا رہے گا میرے کلام کا دکھ۔ جس سے نہ صبح کا غم ہے نہ کوئی شام کا دکھ، بہت اچھا، سمجھ سکے گا تو کیسے میری عوام کا دکھ۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا۔ واہ 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 واہ۔ یہ تھے سید فرحت عباس شاہ صاحب، ان کی محبت کہ انہوں نے اس موقع کو جہاں بھی تھے ٹیکنالوجی کے ذریعے استعمال کر کے اپنی شرکت کا جو ہے وہ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اگلے مہمان کو دعوت دوں، میں صدر محفل کی اجازت سے اپنے چند اشعار کے ذریعے اگلے مہمان کو دعوت دوں گا۔ صدر محفل کی صدارت کی صدر کی اجازت ارشاد کریں۔ ایک غزل ہے، ارشاد۔ محبت اور مروت کی کہانی۔ محبت اور مروت کی کہانی، محبت اور مروت کی کہانی، بہت اچھی لگی ان کی زبانی۔ مزاج ترش رو زعم تکلم، مزاج ترش رو زعم تکلم، رہے گی کب تلک یہ سر گرانی۔ اور عرض کیا ہے کہ محافظ کہہ رہا ہے ساکنوں سے، محافظ کہہ رہا ہے ساکنوں سے، محافظ کہہ رہا ہے ساکنوں سے، کرو اب شہر سے نقل مکانی۔
वाह क्या वाह, फिर सुनाइए। वाह क्या बात है, क्या आदाब आदाब, शुक्रिया। मुहाफिज कह रहा है साकिनों से, करो अब शहर से नकले मकानी, तुम्हारे नाम का डंका बजेगा, बहुत अच्छा मिस हमारे है। नाम का डंका बजेगा। तुम्हारे नाम का डंका बजेगा, दरो दीवार पर लिख दो कहानी। वाह 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 वाह, आदाब। बहुत खूब। अर्ज कर रहा हूँ कि उजाला भी अंधेरा लग रहा है, है, क्या मिस है। उजाला भी अंधेरा लग रहा है, नहीं है शाम अब कोई सुहानी। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उजाला भी अंधेरा लग रहा है, नहीं है शाम अब कोई सुहानी, हमारी खामोशी पे हैं वो बरहम। हमारी खामोशी पे है वो बरहम। जी, पर हम हमारी खामोशी पर हैं वो है वो बरहम, बरहम। हमें आती नहीं बातें बनानी। हमारी खामोशी पे हैं वो बरहम, हमें आती हमें आती नहीं बातें बनानी। और आखिरी शेर अर्ज है कि हमेशा दूसरों की बात सुनते, हमेशा दूसरों की दूसरों बात की बात सुनते, हमेशा दूसरों की बात सुनते। हमेशा दूसरों की बात सुनते, हुई बेकार यूं अपनी जवानी। बहुत मोहब्बत और मुर्रवत की कहानी बहुत अच्छी लगी उनकी ज़बानी। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आदाब अर्ज़ है, आदाब अर्ज़ है। मैं अगले मेहमान तो दावत देने से पहले उनके इन अशार से तारुफ कराना चाहूँगा। रात रोशन न हुई कहकशां होते हुए, रात रोशन न हुई कहकशां होते हुए, मैं भी लौ दे न सका शोले जां होते हुए। वाह जी वाह। ये भी मुमकिन है कि मैं जंग में फाते ठहरूं, ये भी मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि मैं जंग में फाते ठहरूं, तेरे कब्जे में मेरे तीरों कमां होते हुए। इन खूबसूरत अशार के खालिक मोहतरम मुस्तफ़ा शहाब को हम दावत कलाम देना चाहेंगे। आपका आबाई रिश्ता उर्दू के अहम दबिस्तानों में से एक यानी भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत हैदराबाद दक्कन से है। आप गुज़श्ता कई दहाइयों से लंदन में मुकीम हैं और वहाँ पर भी उर्दू की खिदमत के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। आप लंदन में बर्रे सग़ीर के तमाम शोरा के हमरा मुशायरों में शिरकत करते रहे हैं। आपकी गज़लों और नज़मों पर मुश्तमिल 4 किताबें अब तक शाये हो चुकी हैं, जिनमें शाम ढले सवेरा, सफ़र आमादा, आंधी सरे शाम और रात जुगनू की शामिल हैं। इंतहाई हलीम और शफीक तबीयत के मालिक मारूफ अदबी शख्सियत मोहतरम मुस्तफ़ा शहाब से दरख्वास्त है कि हाज़रीन को अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मुस्तफ़ा शहाब। शुक्रिया भाई। आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी आ रही बिल्कुल है। क्लियर आ रही है। खुदा का शुक्र है। सब एक 2-3 अशार भुट्टो साहब की नजर हैं। मैं इनकलाबी शायर तो नहीं हूँ, मगर मैंने कोशिश की है। वो हर चराग की लौ बन के जलने वाला है, वो हर चराग की लौ बन के जलने वाला है, हमारे ख्वाबों की ताबीर बनने वाला है। जहाँ पे जुल्मते शब ने बुझा दिया है दिया, जहाँ पे जुल्मते शब ने बुझा दिया है दिया, वहीं से सुबह का तारा निकलने वाला है, वहीं से सुबह का तारा निकलने वाला है। बहुत खूब। ये आस प्यास बढ़ाती रही है प्यासों की, ये आस प्यास बढ़ाती रही है प्यासों की, कि रेगजार से दरिया उबलने वाला है। और दुआएं दो के न हो तीरगी की जीत कभी, दुआएं दो के न हो तीरगी की जीत कभी, सदा सुनो कि नया दिन निकलने वाला है। बहुत खूब। मैं एक गजल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ सर। ये ताजा गजल है, मैंने कल परसों वाली लिखी है, सुनाता हूँ। सतरंगी है चुनरी तेरी, रूप सुनहरा मेरा, सतरंगी है चुनरी तेरी, रूप सुनहरा मेरा, तेरी बगिया जहाँ खिली है वहीं है सहरा मेरा,
वाह हाँ हाँ वाह की है चुनरी तेरी रंग सुनहरा मेरा, तेरी बगिया जहाँ खिली है वहीं है सहरा मेरा, तेरी रसाई जितनी है उतनी ही पहुंच है मेरी, वाह तेरी रसाई जितनी है उतनी ही पहुंच है मेरी, सारा समंदर तेरा है हर एक किनारा मेरा, वाह क्या बात वाह है, क्या तेरी क्या बात रसाई है। जितनी है उतनी ही पहुंच है मेरी, सारा समंदर तेरा है हर एक किनारा मेरा, मेरा मेरा हाँ हाँ अब वो मुझसे पूछ रहा है कौन हो तुम और क्या हो, हाँ वाह हाँ वो मुझसे पूछ रहा है कौन हो तुम और क्या हो, तो क्या हो, उसने बिना जाने ही मुझको वक्त गुजारा मेरा, वाह वाह अब वो वाह मुझसे वाह पूछ रहा है कौन हो तुम और क्या हो, क्या हो, क्या हो, बिना जाने ही मुझको वक्त गुजारा मेरा, और पहले पहल वाह आंसू आते हैं उसके बाद हंसी भी, वाह पहले पहल आंसू आते हैं उसके साथ हंसी भी, नफा दुखों से ले लेता है रोज खसारा मेरा, बहुत अच्छा वाह वाह नफा फिर वाह सुनाइए शेर, ले लेता है रोज खसारा मेरा, वाह बहुत ही अच्छा शेर, वाह और दोस्त पुराना मिलने आया, दोस्त पुराना मिलने आया, दोस्त पुराना मिलने आया, लौटा अजनबी बनकर, हाँ हाँ दोस्त पुराना मिलने आया लौटा अजनबी बनकर, जाने किसको ढूंढ रहा था देख के चेहरा मेरा, दोस्त बहुत जाने किसको ढूंढ रहा था देख के चेहरा मेरा, और झील के नीले पानी पर तस्वीर बनी थी दो, झील के नीले पानी पर तस्वीर थी हम दोनों की, वाह हाँ झील के नीले पानी पर तस्वीर थी हम दोनों की, आके एक लहर ने बांटा अक्स तुम्हारा मेरा, वाह क्या बात है वाह वाह वाह। बहुत अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब, अगर वक्त है तो एक और एक गजल सुना दूं आपको, जी इरशाद। वक्त की थे, सुनाए सुनाए इरशाद, ये हमें कौन छू के गुजरा, तुमने देखा न मैंने देखा, हाँ हाँ ये वाह हमें छू के गुजरा, तुमने देखा न मैंने देखा, वाह प्यार का एक जुग के लम्हा, तुमने देखा न मैंने देखा, न मैंने देखा, वाह ये हमें कौन छू के गुजरा, तुमने देखा न मैंने देखा, प्यार का एक जुग के लम्हा, तुमने देखा न मैंने देखा, दूर होकर भी थे नजर में अपनी ऐसी भी दूरियां थी, दूर वाह होकर भी थे नजर में अपनी ऐसी भी दूरियां थी, दौर वो भी था खुरबतों का, दौर वो भी था खुरबतों का, तुमने देखा न मैंने देखा, वाह हाँ हाँ बहुत खूब दूर न मैंने देखा, और जाने किन मंजिलों की वो धुन भी था में, कुर्बतों का, दौर वो भी था खुरबतों का, तुमने देखा न मैंने देखा, जाने किन मंजिलों की धुन में चलते ही जा रहे थे दोनों, जाने किन मंजिलों की धुन में चलते ही जा रहे थे दोनों, रास्ते में हमारा घर था तुमने देखा न मैंने देखा, न मैंने वाह देखा, वाह जाने जाने किन मंजिलों की धुन में चलते ही जा रहे थे दोनों, बहुत अच्छा शेर रास्ते है, में हमारा घर था तुमने देखा न मैंने देखा, न मैंने देखा, हमने हाँ हमने देखा तो था फजा में दूर तक फैलते हुए धुएं को, हमने देखा तो हमने था फजा में दूर तक फैलते हुए धुएं को, और कब बुझा प्यार का शरारा तुमने देखा न मैंने बहुत देखा, अच्छा, ना मैंने देखा वाह बहुत अच्छा, अपनी आंखों में भर गई थी यक बयक जैसे रोशनी सी, हाँ हाँ अपनी आंखों में भर गई थी यक बयक जैसे रोशनी सी, चांद चमका के तारा टूटा तुमने देखा न मैंने देखा, न ना मैंने मैंने देखा, वाह वाह चांद बहुत अच्छा, चमका के तारा टूटा तुमने देखा न मैंने देखा, बहुत और अच्छा बहुत और हम सफर था शहाब यूं तो एक खामोश सा समंदर, हाँ 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 वाह वाह हम सफर था शहाब यूं तो एक खामोश सा समंदर,
बात बांका मगर इशारा तुमने देखा न मैंने बहुत देखा। अच्छा, वाह, बहुत 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 शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वाह, सुनने। बहुत वाह। हो गए। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत वाह उम्दा। वाह ये थे बड़ी खूबसूरत। मोहतरम मुस्तफ़ा शहाब। रगों में बोए थे हमने अजाब जख्मों के, रगों में बोए थे हमने अजाब जख्मों के, खिले हुए हैं बदन पर गुलाब जख्मों के। वाह वाह, बहुत अच्छा, खूबसूरत शेर के खालिक मोहतरम शिराज राज गुज़श्ता 10 सालों से बेल्जियम और यूरोप के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में मुकीम हैं। आप शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं और साथ साथ इंसानी हकूक़ की जिद्दोजहद में भी पेश पेश रहते हैं। आपका एक शेरी मजमुआ आईने का भेद मंजर आम पर आ चुका है। हम बसद एहतराम दावत कलाम देंगे मोहतरम शिराज राज साहब को। जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। आइए जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब, इस महफिल में एक यादगार महफिल है वेलकम। और गंद अशार एक हाजिरी के लिए। आग बुझाना जरूरी है, जी जी, आग बुझाना जरूरी है, सामने आना जरूरी है। वाह 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 आग बुझाना जरूरी है, सामने आना जरूरी है। सामने आना जरूरी है। वाह हम भी जिंदा रह लेंगे, हाँ, शहर बचाना जरूरी है। वाह वाह मुकर्रर, वाह बहुत अच्छा, वाह वाह बहुत अच्छी। वाह मुकर्रर। क्या वाह, बात है। बहुत आग अच्छी बात बुझाना, कही। आग बुझाना जरूरी है, वाह, सामने आना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, हम भी जिंदा रह लेंगे, वाह वाह वाह, शहर बचाना जरूरी है। शहर बचाना है। वाह बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। रंग बिरंगे कच्चे धागे, रंग बिरंगे कच्चे धागे, वाह ताना बाना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, वाह 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 वाह, रंग बिरंगे कच्चे धागे, ताना बाना जरूरी है। जरूरी है। अंदर की दीवारें चीन, वाह अंदर की दीवारें चीन, इसे गिराना जरूरी है। क्या बात है। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, अच्छा ख्याल है। क्या बहुत खूब खूब, बात बहुत की अच्छी है। बात। बहुत अंदर की दीवारें चीन, नहीं गिराना जरूरी है। इसे गिराना जरूरी है। वाह वाह, बात कहो और बात सुनो, बात कहो और बात सुनो। और बात सुनो, खून बहाना जरूरी है। आहा, आहा, आहा वाह, बहुत ही क्या अच्छा, बात है। बात क्या कहो, बात है, क्या कहने। फिर कहिए। बात कहो और बात और सुनो, बात सुनो, बहुत अच्छी। खून बहाना जरूरी है, क्या बात, ताकि हम महफूज रहें, ताकि हम महफूज रहें, ढोल बजाना जरूरी है। वाह आहा, वाह, वाह, बहुत वाह खूब। वाह ताकि वाह, हम महफूज रहें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ढोल बजाना जरूरी है। बहुत अच्छा। सपने देखने वालों का, हाँ, सपने देखने वालों का हाथ बटाना जरूरी है। बहुत अच्छा, वाह क्या कहना बहुत है। सपने देखने वालों का बहुत हाथ अच्छा, बटाना जरूरी है। बहुत अच्छा, जी उठते हैं कई मुसाफिर, दिया जलाना जरूरी है। बहुत अच्छी वाह वाह, वाह वाह वाह, जी उठते हैं कई मुसाफिर, दिया जलाना जरूरी है। दिया जलाने, और चिड़ियां कम कम बोलती हैं, वाह वाह चिड़ियां कम कम बोलती हैं, चिड़ियां कम कम बोलती, इन्हें मनाना जरूरी है। वाह वाह, वाह वाह चिड़ियां वाह कम कम बोलती हैं, वाह 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 इन्हें मनाना जरूरी है। वाह वाह, बुल्ले शाह, ओ बुल्ले शाह, बुल्ले जी, शाह,
ओ बुल्ले शाह, तेरा आना जरूरी है। ओहो वाह वाह बुल्ले अच्छा है शाह, क्या बात है ओ बुल्ले शाह, वाह तेरा आना जरूरी है जरूरी है और राज तुम्हारा मक्तल में हाँ पह जाना जरूरी है। वाह वाह दोबारा वाह वाह वो सुनाइए खून बहाना जरूरी है राज तुम्हारा मक्तल में पहले जाना जरूरी है। जरूरी है बात वाह वाह बात कहो और बात सुनो, और बात सुनो सुभान अल्लाह खून बहाना जरूरी है। क्या बात तो खून बहाना वाह जरूरी है बहुत अच्छा चिड़िया कम कम बोलती हैं, हाँ इन्हें मनाना जरूरी है। ओए होए होए। बहुत खूब है जी, बहुत बहुत खूब है। अच्छा चिड़िया और कम मक्ता कम बोलती हैं, मक्ता भी सुनाइए वाह राज राज तुम्हारा मक्तल में पहले जाना जरूरी है और बस जी सपने बस देखने वालों का हाथ जीते बचाना रहे जरूरी है। बहुत अच्छा बहुत बहुत खूब है। सपने बहुत खूब। आग बुझाना बहुत अच्छी जरूरी है, बहुत अच्छी सामने गजल आना जरूरी है। बड़ी मेहरबानी जनाब, शुक्रिया बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गजल है बहुत अच्छी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शिराज राज साहब ब्रसल से। अब हम मोहतरम रियाज रहीम साहब को ज़हमत कलाम देंगे, जिनका ताल्लुक़ जनूबी हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटका के खूबसूरत इल्मी और अदबी शहर धारवाड़ से है। आप इस वक्त मुंबई में मुकीम हैं और यहाँ भी उर्दू की खिदमत का सिलसिला जारी है। कौमी और बैनुल अक़वामी अदबी महफ़िलों में बाकायदगी से शिरकत फरमाकर अपनी खूबसूरत तरक्की पसंद फ़िक्र की शायरी से लोगों के दिलों में घर बना चुके हैं। आपकी अदबी और इल्मी खिदमात के तरफ में महाराष्ट्र अकेडमी उर्दू अकेडमी की जानिब से एवॉर्ड से नवाजा गया। आप जनवादी लिखेत संघ अवामी तरक्की पसंद मुसन्निफीन की अंजुमन में मरकजी मजलिस आमला के रुकन हैं। याद रहे कि इस अंजुमन की पहली सदर मोहतरमा इस्मत चुगताई थी। बस आपकी अब तक 3 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें एक शेरी मजमूआ जब तक मंजर बदल न जाए, दूसरा शेरी मजमुआ हिंदी रस्मुल खत में है जिसका उन्वान है पूछना है तुमसे, और तीसरी किताब गज़लों नज़मों और मज़ामीन पर मुश्तमिल है। हम आपके इस खूबसूरत शेर से आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे। एक तुम हो कि तुम्हें सोचना आता ही नहीं, एक एक तुम तुम हो हो कि तुम्हें सोचना आता ही नहीं, वाह एक हम हैं कि बहुत सोच के नुकसान में हैं। वाह और मोहतरम रियाज रहीम वाह साहब। वाह वाह जी वाह रियाज भाई अपना माइक खोलिएगा। जी आवाज आ रही? जी आ रही है। आ रही बिल्कुल आ रही जी आप सबसे पहले तो सैफी साहब और ताहिर अब्बास साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने शहीद भुट्टो पर इतना इतने खूबसूरत मुशायरे का एहतमाम किया। और ये एक तारीखी हकीकत है कि भुट्टो साहब की जो फांसी थी वो दुनिया की तारीख का एक बदतरीन और भयानक सानहा था। वाह मुमताज़ फिक्शन राइटर असगर वजाहत ने अपने एक स्टेज प्ले में को कुछ इस तरह से शुरू किया है, बासिर साहब, इस तरह से शुरू किया है कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाई थी नाथूराम गोडसे पर, इसके बावजूद वो बच गए थे। स्टेज प्ले का हिस्सा है, बच गए थे। तो बचने के बाद गांधी जी ने सबसे पहली बात जो कही थी वो ये थी कि मुझे नाथूराम गोडसे से मिलाओ, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ। तो एक दुनिया का कोई भी रोशन ख्याल शख्स बातचीत पर यकीन रखता है और एक तानाशाह सिर्फ जुल्म पर, मनमानी पर और शिद्दत और तशद्दुद पर यकीन रखता है। जहाँ तक भुट्टो साहब की मौत का ताल्लुक़ है, ये इंतहाई भयानक वाक़या था, सानहा था, और हिंदुस्तान में भी रोशन ख्याल मुसन्निफ़ीन, चाहे वो किसी भी
मसलक और किसी भी मजहब के हों, उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया था। और आज जो है नाथुराम गोडसे एक कातिल की हैसियत से जाना जाता है, गांधी जी शहीद की हैसियत से जाने जाते हैं, इसी तरह से भुट्टो साहब एक शहीद की हैसियत से जाने जाते हैं और नाथुराम गोडसे कातिल की हैसियत से। बहरहाल वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। सैफी साहब, मैं कुछ कलाम पेश करता हूँ। एक गज़ल के कुछ शेर मुलाहिज़ा कीजिए, बासित साहब और गुलजार असलम साहब। जी फरमाइए। ये मतलब है गज़ल का, इधर हम हैं उधर होते हुए भी। वाह, उधर होते, इधर हम हैं उधर होते हुए भी, बयाबां में है घर होते हुए भी। बहुत इधर हम हैं उधर होते हुए भी, बयाबां में है घर होते हुए भी, ये दुनिया अमन के ज़ेर असर है। मुझे अब भी यकीन है ये दुनिया अमन के ज़ेर असर है, बहुत कुछ शोर व शर होते हुए भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर पढ़िए प्लीज। ये दुनिया अमन के ज़ेर असर है, बहुत कुछ शोर व शर होते हुए भी, नजर रखते हैं उसकी हर अदा पर, नजर रखते हैं उसकी हर अदा पर, बज़ाहिर बेखबर होते हुए भी। बहुत अच्छा, रफी साहब, बहुत अच्छा। नजर रखते हैं उसकी हर अदा पर, बज़ाहिर बेखबर होते हुए भी, मेरे ही घर में रहना चाहती है, मेरे ही घर में रहना चाहती है, मोहब्बत दर बदर होते हुए भी। बहुत अच्छा, बहुत क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए, शायरी जिसकी बुनियाद रोशन ख्याली पर होती है, वो वही शायरी जो है वाकई में बहुत ज़रूरी है। और मेरी अपनी छोटी सी कोशिश जो है, नज़र मेरे ही घर में रहना चाहती है, मेरे ही घर में रहना चाहती है, मोहब्बत दर बदर होते हुए भी, हमारे जख्म क्यों अब तक हरे हैं, हमारे जख्म क्यों अब तक हरे हैं, हमारे चारागर होते हुए भी। हमारे जख्म क्यों अब तक हरे हैं, हमारे चारागर होते हुए भी, जमी का जायजा ले रहा हूँ, जमी का जायजा भी ले रहा हूँ, सितारों पर नजर होते हुए भी। बहुत खूब। जमी का जायजा भी ले रहा हूँ, सितारों पर नजर होते हुए भी, मुरव्वत के असर में है ये दुनिया, मोहब्बत में असर होते हुए भी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। रियाज रहीम साहब, आपने महफिल को बड़ी रौनक बख्शी और बड़े अपने फ़िक्र अंगेज़ कलाम से हम सबको आपने महसूस किया, और बहुत खूबसूरत आपने खराज अक़ीदत पेश किया शहीद ज़ुल्फ़िकार साहब को। अब हम दावत कलाम देंगे मैं बागी हूँ जैसी तारीख़ी नज़्म के खालिक डॉक्टर खालिद जावेद जान को। आपकी ये तारीख़ी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पसंदीदा नज़्म, जो उन्होंने 10 अप्रैल 1986 को जिलावतनी से वापसी पर मीनार पाकिस्तान के जलसे में पढ़ी। इसी उन्वान से आपका शेरी मजमुआ भी शाये हुआ, जिसकी तकरीब रुनुमाई में शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने 27 नवंबर 1992 को सदारत फरमाई। इस किताब के तराजुम हिंदी, गोरमुखी, मणिपुरी और इंग्लिश में भी शाये हो चुके हैं। इंडिया में हालिया शहरियत बिल के तनाज़े पर जामा इस्लामिया दिल्ली समेत कई मकामात पर पढ़ी गई। इन दिनों इंडिया में किसानों की तहरीक में भी ये नज़म टॉप ट्रेंड पर है। आपकी दीगर तसानीफ में जिंदा में कोई दीवाना, आओ मुझको मसलूब करो, इस शहर संग में और पंजाबी सूफियाना शायरी का मजमुआ इश्क सलामत शामिल हैं, जिसे पंजाब राइटर्स गिल्ड और मसूद खद्दर पोश अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा आपने लियोन ट्रॉट्स्की की किताब फासिज्म क्या है और इससे कैसे लड़ा जाए और 10 मेडिकल कुतुब सीरीज इंसानी जिस्म का तर्जुमा कर चुके हैं। हम बसद एहतराम डॉक्टर खालिद जावेद जान से दरख्वास्त करेंगे कि अपना कलाम पेश करें। बहुत खूब, बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
सैफी साहब, मैं ममनून हूँ सैफी साहब का और ताहिर अब्बास साहब का और उनकी टीम का कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुरतब किया। मैं चूँकि पंजाब कल्चरल विंग का प्रेसिडेंट हूँ, तो थोड़ी बहुत काविश जो है वो हमारी और पेशावर के जो हमारे कल्चरल विंग है यावर साहब, उनकी भी साथ रही है। हमारे लिए भुट्टो साहब की ज़ात जो है वो आजकल जब हम सियासी लीडरों को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि वो एक रोशन सितारा थे। उनके कदों काठ का कोई लीडर आज नजर नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि जैसे नाबीनाओं की बस्ती में आंखें रखना, बीना होना, और बौनों की बस्ती में कादावर होना एक जुर्म है। यही जुर्म भुट्टो साहब का था। तेरा बड़ा तो जुर्म यही था, तेरा बड़ा तो जुर्म यही था, सब मिट्टी थे तू सोना था। वाह 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 तेरा बड़ा तो जुर्म यही था, सब मिट्टी थे तू सोना था, तेरे कद से सब जलते थे, तेरा हर दुश्मन दीवाना था, तेरा हर दुश्मन। और उन तमाम बहनों ने मिलकर एक हमारे अहद की कदावर शख्सियत को, उनके नजरियात तो नहीं खत्म कर सके, लेकिन उनके वजूद को खत्म करने की, जिससे खाकी को खत्म करने की कोशिश की। उसी हवाले से चूंकि हमारा वो पहला इश्क भी था, मैं बागी हूँ जो मैंने नज्म लिखी, तो वो भी वही टाइम था जब जनरल ज़िया का मार्शल लगा और भुट्टो साहब के की हुकूमत को खत्म किया गया, क्योंकि वो वाहिद हुकूमत थी। उसके बाद अभी तक पाकिस्तान में अगर कुछ सालों के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर ने अपनी सलाहियत की बुनियाद के ऊपर हुकूमत की है तो वो जुल्फकार अली भुट्टो और उनका दौर था। उससे ना पहले ना उसके बाद बाकी सब नौकरियां करते रहे। तो उस हवाले से एक दो अशार हैं कि हम आग में फेंके गए या दार पे लाए, हम आग में फेंके गए, आग में फेंके गए या दार पे लाए, हर हाल में सच को लबे गुफ्तार पे लाए। अच्छा खालिद भाई जान, बहुत अच्छा, हर हाल में सच को बहुत लबे अच्छा, गुफ्तार पे लाए। वाह, और असलम साहब काबिल गौर है बहुत अच्छा, कि अब मुझसे तलब करते हैं इकरार इताअत, वाह वाह वाह, तलब करते हैं इकरार वाह इताअत, वाह, अब मुझसे तलब करते हैं इकरार इताअत, इकरार इताअत, जो लोग मुझे कूफे इनकार पे लाए। वाह 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 वाह, बहुत ये खूब तलब जनाब। करते हैं बहुत अच्छा, इकरार इताअत, वाह जो वाह लोग मुझे कूफे इनकार पे लाए। वाह वाह, और ये शेर देखिए और भुट्टो शहीद की कुर्बानी देखिए कि कांधे पे तो हर शख्स लिए फिरता है सर को, जी, हर एक शख्स लिए फिरता है सर को, कांधे पे तो हर शख्स लिए फिरता है फिरता सर को, सरदार वही है कि जो सरदार पे लाए। क्या बात वाह है, बहुत वाह अच्छा, वाह सही क्या बात, बात, खालिद भाई जान, बहुत बहुत अच्छा अच्छा, है, बहुत बहुत खूब। अच्छा, बहुत पढ़िए, बहुत बहुत अच्छा शेर है, कांधे पे वाह, तो हर शख्स मजा आ लिए गया, बहुत फिरता है सर को, वाह जी वाह, सरदार वही है कि जो सरदार पे लाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सरदार वही वाह है वाह, कि जो सरदार पे लाए। और हक गो की निशानी है कि वो अपनी जुबान को, हकों की निशानी है कि वो अपनी शेर जुबान, बोलता हक है, गो की शेर बोल रहा निशानी है, है कि वो अपनी जुबान को नेजे की अनी पर कभी तलवार पे लाए। बहुत क्या अच्छा, बात, वाह 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 जी क्या बाबा, हक बात, गो की निशानी है वाह वाह कि वाह वो वाह, अपनी जुबान को
वाह वाह नेजे की अनी पर कभी तलवार पे आए। वाह 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 वाह। और भुट्टो साहब के हवाले से 2-4 और अशआर हैं कि मक्तल को जाने वाले की वो आबो ताब निराली थी। जी हाँ जी हाँ। मक्तल को जाने वाले की वो आबो ताब निराली थी, सर खम न किया सरदार रहा, क्या अजमत मिलने वाली थी। वाह वाह। मक्तल को जाने वाले की वो बहुत आबो खूब। ताब निराली थी, सर खम न किया सरदार रहा, क्या अजमत मिलने वाली थी। वाह। वो शख्स जिएगा ताबा अबद, वो जिस्म अगरचे फानी है, वो हम में नहीं है आज मगर वो अपने कल का बानी है। वाह वाह। फिर पढ़िए। वो शख्स जिएगा ताबा अबद, वो जिस्म अगरचे फानी है, वाह वाह। वो हम में नहीं है आज मगर वो अपने कल का बानी है। उस बहते खून की सुर्खी से, जी हाँ, उस बहते खून की सुर्खी से एक नया सवेरा उभरेगा। वाह वाह। उस बहते खून की सुर्खी से एक नया सवेरा उभरेगा। अब दार पे तो इंसान चढ़ा, कल दार से ईसा उतरेगा। कल दार एक शख्स के सर के बदले में, एक शख्स के सर के बदले में। असलम साहब की इजाजत से अगर कोई टाइम है तो नहीं आप बिल्कुल टाइम ही टाइम है। एक नज्म थी, वो टीवी पे भी उसको काफी उसका डॉकू ड्रामा बना, वो कत्ल की रात, कि जिस रात भुट्टो साहब को फांसी दी गई, वो शख्स अपनी जेल की जो काल कोठरी है उससे निकलकर जब फांसी घाट की तरफ जा रहा था, वाह, तो क्या मंजर था, उसने क्या सोचा होगा। तो ये इमेजिनेशन है और ये पीटीवी के लिए मैंने डॉकू ड्रामा भी बनाया था, वो पीटीवी पे भी चलता रहा, अभी यूट्यूब पे भी है, जो दोस्त देखना चाहें। वो कत्ल की रात अगर आप लिखेंगे तो उसमें मैंने वो देखा वो दुख की एक घड़ियां थी कि मक्तल की जानिब जब तूने, मक्तल की जानिब जब तुमने पहला कदम उठाया होगा, कैसा वो एक लम्हा होगा, कैसा मंजर छाया होगा। रात की गहरी तारीकी में हर जानिब सन्नाटा होगा, वक्त की नब्जें रुकती होंगी, लम्हा लम्हा ठहरा होगा। वाह वाह। तेरी जेल के सारे साथी सलाखों से लिपटे होंगे, तेरी जानिब देख के उनके सीने कटते फटते होंगे। वाह वाह। उनका जी ये चाहता होगा, वाह वाह। उनका जी ये चाहता होगा, जेल की सब दीवारें ढा दें, इसकी ईंट से ईंट बजा दें, सूली घर को आग लगा दें। क्या मिसरा है, क्या बात है। लेकिन वो मजबूर दीवाने ठंडी आहें भरते होंगे, तुझको जाते देख के सारे पल पल जीते मरते होंगे। बहुत अच्छा। तूने फिर जब उनकी जानिब वाह बेबस होकर देखा होगा, कैसे फिर वो तड़पे होंगे, सारा मक्तल चीखा होगा, हमको छोड़ के यूं ना जा तू, मजदूरों के प्यारे भुट्टो, तेरी खातिर हम मर जाएं, सबकी आंख के तारे भुट्टो। तारे भुट्टो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह वाह। तुझको ले जाने वाले भी, तुझको ले जाने वाले भी अंदर अंदर रोते होंगे। वाह वाह। पर खामोशी होगी, दिल में तूफान मचले होंगे। मक्तल की जानिब जब तूने अगला कदम उठाया होगा, तेरी आंखों के आगे फिर
क्या क्या मंजर आया होगा। बहुत अच्छा, क्या मंजर कशी है भाई, बहुत बहुत। वो दिन जबकि तुझको भुट्टो टूटा पाकिस्तान मिला था, रोता हर इंसान मिला था, गहरा एक बहरान मिला था। वाह वाह। तूने तिनका तिनका करके फिर से गुलशन को जोड़ा था, कौम को एक आईन दिया था, नफरत का हर बुत तोड़ा था, मसले कुचले लोगों को भी प्यार दिया था, अजमत दी थी, सदियों से तहकीर थी जिनकी, उनको तूने इज्जत दी थी। क्या तारीख बयान की थी भाई, बहुत अच्छा। सारी दुनिया के इस्लामी मुल्कों को फिर एक किया था, सारे भाई मिल बैठे थे, काम ये कैसा नेक किया था। हाथ तो ये है कि ढाका के मैदानों में गैर के आगे वो हथियार जिन्होंने डाले, अपनों का खून पीने वाले, कैद से दुश्मन की उनको भी तूने ही आजाद कराया, जो मैदान से भाग के आए उनको सर आंखों पे बिठाया। उनकी जंजीरों को तूने कितनी मेहनत से तोड़ा था, उन एहसान फरामोशों ने उनमें ही तुझको जकड़ा था। तू जब अपने हाथों की उन जंजीरों को तकता होगा, इस एहसान फरामोशी पर कितना तुझको सदमा होगा। कैद के उन 2 सालों की वो घड़ियां भी याद आती होंगी, जेल में तेरे बच्चों की जब बोझल चीखें गूंजती होंगी, तेरे इश्क में जो परवाने आग में जलकर खाक हुए थे, गासिब हाकिम की बस्ती में जिनके गरेबां चाक हुए थे, जेल की कितनी रातें तूने बेचैनी में काटी होंगी, तुझको ये इनाम मिलेगा, बातें कब ये सोची होंगी। तेरी कितनी ख्वाहिश होगी, तेरी कितनी ख्वाहिश होगी, अपनों के फिर चेहरे देखे, बेटी को डोली में डाले, बेटों के सर सेहरे देखे। लेकिन तेरे चारों जानिब मौत का एक सन्नाटा होगा, खुद से बातें करके तूने अपना गम खुद बांटा होगा। तेरे बाप की रूह ने उस दिन सर पे हाथ तो रखा होगा, जिस माँ ने ये शेर जना था उसने माथा चूमा होगा। फिर जब दार के तख्ते पर तू अपने कदमों से पहुंचा था, तुझसे सारी दुनिया छोटी, भुट्टो तू तुझसे ऊंचा। फिर जब दार के तख्ते पर तू अपने कदमों से पहुंचा था, तुझसे सारी दुनिया छोटी, भुट्टो तू सबसे ऊंचा था। तब भी तूने खामोशी के लहजे में बस यही कहा था, मेहनत कश मजदूर किसानों, मैंने तुमसे अहद किया था, साथ न छोड़ूंगा मैं तुम्हारा, चाहे कोई भी आफत आए, रहम की भीख न मांगूंगा मैं, चाहे मेरी जान भी जाए। देखो कौल निभाता हूं मैं, सूए मक्तल जाता हूं मैं, तुमसे रिश्ता पक्का करने सूली पे चढ़ जाता हूं मैं। हर जानिब फिर शोर हुआ था, कहर उठा कोहराम मचा था, भुट्टो दार पे झूल गया था, आज का ईसा कत्ल हुआ था। देख ले भुट्टो तेरी खातिर आज तो सारे ये मेले हैं, तू जिनका रांझा था पहले अब आबाद वही बेले हैं, लेकिन तेरे जूतों की जो खाक था तेरा वो दरबारी, अपने मोहसन का वो कातिल जिसने की तुझसे गद्दारी, जिसने तेरे बच्चों को भी तेरी मैयत पर रोने की, अपना गम हल्का करने की पल भर को मोहलत ना दी थी। वो जालिम सफाक लुटेरा उसने जिसने इस घर को लूटा था, जिसने वक्त के चौराहे में फांसी घर तामीर किया था, वक्त ने उस जल्लाद को अपने रस्ते से यूं साफ किया है
उसने जितने जुल्म किए थे, एक एक का इंसाफ किया है। उसने जितने कोड़े मारे उतने टुकड़ों में खुद बिखरा। उसने जितने कोड़े मारे उतने टुकड़ों में खुद बिखरा। उस पर रोने वालों को भी लाश का कब दीदार हुआ था। उसने जितने नाम मिटाए उतना खुद बेनाम हुआ था कि धरती में दफनाने को जिस्म न था ताबूत में उसका, लेकिन तू कल भी जिंदा था, आज भी भुट्टो तू जिंदा है। तेरा नाम रहेगा बाकी, तेरा दुश्मन शर्मिंदा है, तेरा दुश्मन शर्मिंदा है। बहुत अच्छा, क्या तारीफ बयान की है भैया आपने। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब। सैफी भाई, ये जावेद आफ्ताब साहब वेरी मच। मैं उधर ही आ रहा हूँ। मैं यही कहने वाला था कि जैसे ताहिर अब्बास साहब ने फरमाया था कि ये टेक्निकल चीज़ों में हमारे हिफ्ज़ मरातिब का जो है ना बड़ा नुकसान हो जाता है, जो हम चाहते हैं कि हमें। हाँ, तो मैं गुजारिश करूँगा जावेद आफ्ताब साहब के अपना एक कलाम प्लीज़ वक्त की उसके नज़ाकत को देखते हुए एक कलाम पेश करें। इसके बाद हम अपने अगले शायर को दावत कलाम देंगे। अपना माइक खोल लीजिए। जी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। बिल्कुल। एक तो पहले अपने सीनियर से और दोस्तों से बहुत मदद कि आप सबको मेरी वजह से जहमत हुई, और मैं बहुत से दोस्तों का कम सुनने से महरूम भी रहा। और सच्ची बात तो ये है कि मेरे बड़े सीनियर हैं डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब, अब बहुत मुनासिब नहीं लगता कि मैं उसके बाद और दो जो कि सीनियर्स अगर तो वो इजाजत दें और आप सब मुनासिब मुनासिब नहीं लग रहा। इजाजत सुनाऊं, एक तहजीब के खिलाफ लग रही है मुझे। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, ये टेक्निकल बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आप वैसे भी बहुत ज्यादा तहजीब वाले नहीं हैं। काफी इजाजत है जी सर। मैं क्या पहले भी आप बहुत ज्यादा तहजीब याफ्ता नहीं है, कोई बात नहीं चलती। एक नज़म पेश है सूरत तो उन दोस्तों को और हमारे तमाम सीनियर को, शोहदा को, जिस तरह भुट्टा के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, उन सबको अंजुमन मुसन्निफीन की तरफ हाल सलाम। और उन्हीं के और सारी सूरत पस मंजर के हवाले से नज़म का उन्वान है कैसा समा था। तूने रात की चादर ऐसी बिछाई, तूने रात चादर ऐसी बिछाई, सुबह की किरण तरस गए। वो था जो कभी हमारी कभी तारी थी। तूने रात चादर ऐसी बिछाई, सुबह की किरण को तरस गए। वो सुबह जो कभी हमारी कभी तुम्हारी थी। कैसा समा था, कैसा समा था जब सूरज दिल के आंगन में उतरकर अटखेलियां करता, सितारे हथेलियों पे टिमटिमाते, चांदनी छत पे बसेरा करती। कैसा समा था जब सूरज के आंगन में उतर अटखेलियां था, सितारे हथेलियां टिमटिमाते, चांद छत पे बसेरा करती। हवाएं जिस्म में सरसराती, हवाएं जिस्म में सरसराती, बादल गिराते, बादल गिराते और अपनी आगोश में लेकर लोरियां सुनाते। कैसा समा था, कैसा समा था जब वक्त नफ्स पर हमारे हाथ थे। कैसा समा था जब वक्त नफ्स पर हमारे हाथ थे। सेकंड मिनट घंटे दिन हफ्ते महीने साल, सेकंड मिनट घंटे दिन हफ्ते महीने साल हमारे एक ही इशारे पर उंगलियों की पोरों पर थरकते थे, और थरकते थरकते हमारे एक ही इशारे पर दम तोड़ देते थे। कैसा समा, कैसा समा था जब साहिबान की धूप को छांव समझकर उम्र की गरहें खोलते रहे। वाह। कैसा समा था जब साहिबान की धूप को समझकर उम्र की खोलते रहे। वो हैं जो बेखबरी में उलझती, वो हैं जो बेखबरी में उलझती रही, मगर हम दा की रानी पे बहे रहे। वो गिरहें जो बेखबरी उलझती रही, मगर हम दरिया की रानी पे बहते रहे। शायद कोई बदुआ हमारे ताक़ुब में थी, शायद कोई बदुआ हमारे ताक़ुब में थी।
तो खिज़ा की चादर ओढ़ कर जन बता दिया और वक्त चादर सोए रहे। बहुत नवाजा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया जावेद आफ्ताब। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इस शेरी नशिस्त में जिस शायरा को दावत कलाम दे रहे हैं वो पेशे के एतबार से मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन आपने अदब की दुनिया में भी अपनी आमद से सबको खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया था। आपकी शायरी में अपने वतन से मोहब्बत, सारी दुनिया के मजलूमों की आवाज़ के अलावा वतन से दूर मुकीम हम वतनों की गरीबुल वतनी के दर्द की नुमाइंदगी भी नज़र आती है। आपके दो शेरी मजमूए जलती हवा का गीत और वक्त की कैद से क़ारीन और नाक़िदीन से कबूलियत व तहसीन हासिल कर चुके हैं। आपके मुंतखब कलाम के मजमूए कूंज कुरलाई थी कि हिंदी और सिंधी ज़बानों में तराजिम भी हो चुके हैं। उर्दू गज़लों और नज़मों पर मुश्तमिल किताब का अंग्रेज़ी तर्जुमा वंडरलैंड के नाम से इशाअत के करीब है। आप अपने जज्बात और एहसासात का नज़्म और गज़ल के ज़रिए यकसा इजहार करती हैं, लेकिन शायद अदबी हलकों में आपको नज़्म को शायरा के तौर पर ज़्यादा पहचाना जाता है। 15 साल से दुबई में मुकीम हैं और वहाँ ICU इमरजेंसी डॉक्टर के तौर पर इंसानियत की भी खिदमत कर रही हैं। आपको अदबी और तिब्बी खिदमात के सिले में कई एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें बज़्म सदफ़ की जानिब से 2019 में नई नस्ल एवार्ड नुमाया है। हम दावत कलाम देंगे डॉक्टर सरवत ज़हरा को। बहुत शुक्रिया आप सबका, और आपने इस महफिल में मुझे पढ़ने की दावत दी और इतना अच्छा कलाम लोगों से इन जज्बों को जो है सुनने का भी मौका दिया। बहुत शुक्रिया। कूंज कुरलाए थी सिंधी में तर्जुमा है और हिंदी में मेरी पहली किताब का रस्मुल खत हिंदी में शाया हो चुका है हिंदुस्तान से। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं एक नज्म साहिब सदर की इजाजत से आप सबकी फरमाइए। शुक्रिया। ये नज्म मैंने बहुत साल पहले लिखी थी, लेकिन आज आपने पढ़ने का मौका दे दिया, कहीं सुनाने का मौका इस तरह से मैंने नहीं छपी जरूर है, लेकिन पहली बार मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन कई सालों 10 साल पहले तकरीबन। इरशाद कीजिए। नज्म का नाम है 4 अप्रैल के नाम। अभी तलक उस फसीले जिंदा से आने वाली ख्याल की लौ हमारे मौसम तराशती है। अभी तलक उस फसीले जिंदा से आने वाली ख्याल की लौ हमारे मौसम तराशती है। अभी तलक वो उदास सूरज हमारी नस्लों की पुतलियों पर अनी की सूरत गड़ा हुआ है। अभी तलक वो उदास सूरज हमारी नस्लों की पुतलियों पर अनी की सूरत गड़ा हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तलक उस उम्मीद की हू हमारी शामों में मुश्किल है। अभी तलक उस कलम की स्याही हमारी सुबहों के आईनों पर मली हुई है। वाह वाह, अभी तलक कलम की स्याही हमारी सुबहों के आईनों पर मली हुई है। वो दार पर यूं गया कि सारी अदालतों और मुंसिफों के हुरूफ फांसी चढ़े हुए हैं। वो दार पर यूं गया कि सारी अदालतों और मुंसिफों के हुरूफ अब फांसी चढ़े हुए हैं। अभी तलक उस फसीले जिन्ना से आने वाली ख्याल की लौ हमारे मौसम तलाशती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। शुक्रिया। और एक नज्म जो इस सारे मामलात को उस 4 अप्रैल से लेके आज तक मुस्तकिल किए हुए है और हमारे दरमियान हमारे मसाइल को उसी तरह जिंदा भी रखे हुए है, उस नज्म से मैं बस अपनी बात खत्म करूंगी। चंद अशार। इस नज्म का नाम है आमरियत का कसीदा। भारी बूटों तले रोनते जाइए,
भारी बूटों तले रोनते जाइए कोपलों के बदन नाहटों के दिए। भारी बूटों तले रोनते जाइए। वाह वाह जी वाह। भारी बूटों तले रोनते जाइए कोपलों के बदन नाहटों के दिए। भारी बूटों तले रोनते जाइए रेशमा बांध कर ख्वाब हंसते रहे। रेशमा बांध कर ख्वाब हंसते रहे। हब्स की ताल पर सांस चलते रहे। चाहिए आपको और क्या चाहिए। भारी बूटों तले रोनते जाइए कोपलों के बदन नाहटों के दिए। शाम लौ को लिए रात सहने गई। शाम लौ को लिए रात सहने गई। दर्द की ओढ़नी खाक पहने गई। ढांपिए शौक से हर किरण ढांपिए। भारी बूटों तले रोनते जाइए कोपलों के बदन नाहटों के दिए। मसलूब जिस्मों को करने लगी। भूख मसलूब जिस्मों को करने लगी। जख्म बहने लगे आस मरने लगी। आपको क्या गरज हम मरे या जिए। भारी बूटों तले रोनते जाइए। मसलूब जिस्मों को करने लगी। जख्म बहने लगे आस मरने लगी। आपको क्या गरज हम मरे या जिए। भारी बूटों तले रोनते जाइए कोपलों के बदन नाहटों के दिए। और आखिरी शेर और आपकी जहमत तमाम के सिर्फ खाने बदलने से क्या फायदा। सिर्फ खाने बदलने से क्या फायदा। चंद नामे बदलने से क्या फायदा। हम पयादा सफर थे पयादे रहे। भारी बूटों तले रोनते जाइए कोपलों के बदन नाहटों के। दोबारा सिर्फ खाने बदलने से क्या फायदा। चंद नामे बदलने से क्या फायदा। पे यादे रहे। भारी बूटों तले रोनते जाइए कोपलों के बदन नाहटों के दिए। भारी बूटों तले रोनते जाइए। क्या कह रहे क्या कह रहे। क्या बात है जनाब, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मैं हमारे शोरा कराम और दीगर मेहमानों देखने और सुनने वालों के इल्म में ये इजाफा करूं कि डॉक्टर सरवत ज़हरा ये खुशकिस्मती है कि शहीद बीबी के सामने उनकी फरमाइश पर ये काफ़ी इनकलाबी कलाम बीबी को शहीद को भी सुनाती रही हैं दुबई में। ये नज्म उन्होंने फरमाइश करके मुझसे सुनी थी और जो है मेरी खुशकिस्मती कि मैंने उनको करीब से देखा। हमने भी आज सुन ली आपसे। बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मौजूदगी में मैंने पढ़ी। मेरी इज्जत अफजाई है। बहुत शुक्रिया। तकरीब अब हम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं आज के इस मुशायरे के आखिरी लम्हात की जानिब। मैं एक दफ़ा फिर रस्मी तौर पे ऐलान कर दूं, हमारे एक और मेहमान खुसूसी जावेद सबा साहब कराची से, जो हमारे मारूफ शायर और दानिश्वर और सहाफ़ी और ब्रॉडकास्टर और बहुत सारी खूबियों के मालिक, लेकिन उनके खुश दामन का इंतकाल हो गया और कब्रिस्तान से उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं इस पोजीशन में हूँ। तो हमें अफसोस है और हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए, सब्र जमील अता फरमाए। और हमारी एक और मेहमान शायरा बर्लिन से डॉक्टर इशरत मुइन सीमा, उनके साथ भी हादसा हुआ कि उनके बहनोई का पाकिस्तान में इंतकाल हो गया। उनकी भांजी उनके साथ जर्मनी में थी तो उसको पाकिस्तान इमरजेंसी में भेजना पड़ा उन तमाम, और फिर जहनी तौर पर एक सदमा। तो ये ज़िंदगी और मौत के सिलसिले जारी रहेंगे। आज की इस पुरवकार तकरीब के एक और मेहमान खुसूसी मोहतरम बासिर काज़मी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नासिर काज़मी साहब ने फरमाया था कि दाएम आबाद रहेगी दुनिया, दाएम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। हमें इल्म है कि नासिर काज़मी साहब का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इसी घराने से एक फ़र्द अपनी शनाख्त लेकर निकला और गज़ल खानी का वो सिलसिला उसी तरह बरकरार रखा जैसे नासिर काज़मी साहब ने जारी रखा। आप मारूफ शायर, ड्रामा निगार और नक़ाद भी हैं। यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप नासिर काज़मी साहब के बड़े फर्जंद हैं। आपके ड्रामे मारूफ थिएटर्स में स्टेज होते रहे हैं, आप शायरी और ड्रामों पर वर्कशॉप्स करते रहे हैं,
आप बीबीसी से भी वाबस्ता रहे हैं। आपका एक ड्रामा उर्दू और अंग्रेजी में शाये हो चुका है और शेरी मजमुआ मौजे ख्याल के नाम से मंजर आम पर आ चुका है। आप गुज़श्ता 3 दहाइयों से बरतानिया में मुकीम हैं और फरमाते हैं हालत जगह बदलने से बदली नहीं मेरी। हालत जगह बदलने से बदली नहीं मेरी, होती हैं हर जगह की कुछ अपनी खराबियां। तू चाहता है अपनी नई खूबियों की दाद, मुझको अजीज तेरी पुरानी खराबियां। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत क्योंकि तू चाहता है अपनी नई खूबियों की दाद, मुझको अजीज तेरी पुरानी खराबियां। जूं ही ताल्लुकात किसी से हुए खराब, सारे जहां की उसमें मिलेंगी खराबियां। क्या बात, क्या बात है। हम बसद एहतराम मोहतरम बासिर काज़मी साहब से गुजारिश करेंगे कि आप शुरकाए मुशायरा को अपने कलाम से महसूस फरमाएं। बहुत शुक्रिया सफी साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका और ताहिर अब्बास साहब का और आपके दीगर साथियों का कि इतनी बावकार और शानदार और यादगार तकरीर में मुझे शिरकत का मौका दिया और कुछ नए दोस्तों से मुलाकात हुई। ये एक और हवाले से भी जाहिर है कि यादगार है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत की याद में मुनक़्क़िद किया जा रहा है और उनके नाम ये किया गया है। भुट्टो साहब की फांसी के बारे में एक जुमला मैंने किसी जगह लिखा था कि सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के बाद ये हमारे मुल्क का, हमारी तारीख का सबसे बड़ा सानिया था। एक ने हमारे मुल्क को 2 लख्त किया और दूसरे सानिया ने हमारी कौम को। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह, बड़ा खूबसूरत जुमला है। और उसके बाद हम ग्रोहों में, बरादरियों में और क्या कहा जाए छोटे छोटे ग्रुपों, जत्थों में तकसीम होते चले गए और आज हम अब छोटे छोटे ग्रोहों में बट के आपस ही में बट करे करते काम। और एक शेर कहा था कभी कि दुश्मन की नहीं कोई ज़रूरत, आपस ही में हम लड़े मरेंगे। तो 23 मार्च के हवाले से, मार्च का महीना है, यौम आज़ादी की तकरीबात भी हुई, तो सबसे पहले एक छोटी सी नज़्म, उन्वान है दोहरी शहरियत। दोहरी शहरियत। एक वतन वो होता है जिसमें हम रहते हैं, एक वतन वो होता है हम रहते हैं जिसमें हम रहते हैं, एक वतन वो होता है जो हम में रहता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत ही खूब। वाह वाह वाह। एक वतन वो होता है जिसमें हम रहते हैं, एक वतन वो होता है जो हम में रहता है, बहुत अच्छा, हम रहते हैं। बहुत एक गजल पेश करता हूँ। इतने कड़वे दौर में शीरी मकाली किस तरह, कितने कड़वे दौर में, इतने कड़वे दौर में शीरी मकाली किस तरह, पूछ मत अपनी जुबान हमने संभाली किस तरह। किस तरह, इतने कड़वे दौर में शीरी मकाली किस तरह, पूछ मत अपनी जुबान हमने संभाली किस तरह। किस तरह, किस तरह। हुस्न खूबी एक तरफ, उस पर वफा भी खत्म है। हुस्न खूबी एक तरफ, उस पर वफा भी खत्म है। हमको बहलाता है महबूबे ख्याली किस तरह। हुस्न खूबी एक तरफ, उस पर वफा भी खत्म है। हमको बहलाता है महबूबे ख्याली किस तरह। हो गए बेहाल जो तेरे तगाफुल के सबब, हो गए बेहाल जो तेरे तगाफुल के सबब, किस तरह होगी मगर उनकी बहाली किस तरह। वाह, हो गए बेहाल जो तेरे तगाफुल के सबब,
किस तरह होगी मगर उनकी बहाली किस तरह, और पाँव रखना भी जहाँ कल तक न था ज़ेबा उन्हें, वाह पाँव रखना भी जहाँ कल तक न था ज़ेबा उन्हें, वक्त ने लाकर बनाया है सवाली किस वाह तरह। वाह वाह फिर पढ़िए वाह वाह पाँव रखना भी जहाँ कल तक न था ज़ेबा उन्हें, वक्त ने लाकर बनाया है सवाली किस किस तरह। तरह वाह गुलशने जाम में हवाए शेर फिर से चल पड़ी, क्या बात। वाह जी वाह गुलशने जाम में हवाए शेर फिर से चल पड़ी, झूमती है पत्ती पत्ती डाली डाली किस तरह। किस तरह वाह हो गया दिल के मकाम में एक हसीं आकर मकीन, वाह हो गया दिल के मकाम में एक हसीं आकर मकीन, वाह फिक्र ये है अब कराएं इसको खाली किस तरह। किस तरह। वाह 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 खुश रहो और मकर बहुत शुक्रिया। ये हो दोबारा गया दिल इरशाद के हो गया दिल के मकाम में एक मकीन आकर एक हसीं आकर मकीन, वाह जी वाह फिक्र ये है अब कराएं इसको खाली किस तरह। वाह मुद्दतें दरकार हैं बासिर उसूल सब्र को, वाह जी वाह मुद्दतें दरकार हैं बासिर हुसूल सब्र को, एक दिन में तुमने ये दौलत कमाली किस तरह। किस तरह वाह 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 बात क्या बात। वाह वाह वाह। मुद्दतें बहुत दरकार वाह हैं वाह बासिर हुसूल बहुत सब्र को, बहुत एक खूब दिन में तुमने ये दौलत कमाली किस तरह। किस तरह बहुत अच्छा कड़वे दौर में शीरी मकाली किस तरह। वाह वाह पूछ मत अपनी जुबान हमने संभाली हमने संभाली किस तरह। किस तरह। वो बहुत घर वाला शेर जरा एक बार फिर पढ़ दे जी। वो घर वाला वो हो गया दिल के मकाम में एक हाँ हसीं आकर मकीन, वाह जी वाह हो गया दिल के मकाम में एक हसीं आकर मकीन, फिक्र ये वाह है अब कराएं इसको खाली। और किस तरह खाली। बहुत अच्छा बहुत वाह शुक्रिया वाह बासिर भाई वाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी सैफ भाई ये हाँ जी बासर बासर साहब कुछ और कुछ छोटा था कुछ टोटा। मेरे पास तो पूरी कुलियात रखी है मेरी, लेकिन बासिर भाई हम तो मुंतजिर थे कि आप कुछ मजीद गजल कहे टोटा ना कहे याद करें। क्योंकि उसके बाद बस उसके बाद साहब एक सदर ही है बस। जी हाँ एक गजल इख्तिताम है और भाई साहब एक गजल और सुनाए जी मैं सुनाता हूँ। साहिब सदर मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आज बड़ी मेहरबानी नागपुरी साहब की सदारत में मैं शेर सुना रहा हूँ पहली बार, मेहरबानी तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे सामीन आपको सुनना चाह रहे थे। साहिब सदर की इजाजत से। जी जी बिल्कुल मैंने तो खुद फरमाइश की है अच्छा बहुत शुक्रिया। करना है गर मुझे शिकार ला कोई जाल मुख्तलिफ। वाह 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 क्या बात है क्या बात है। करना है गर मुझे शिकार ला कोई जाल मुख्तलिफ, शातिर है तू अगर तो अब चल कोई चाल मुख्तलिफ। बहुत अच्छे। करना है गर मुझे शिकार वाह ला कोई जाल मुख्तलिफ, सुभान अल्लाह। शातिर है तू अगर तो अब चल कोई चाल मुख्तलिफ। तेरे ये सारे शोभ दे मेरे लिए नहीं नए, वाह तेरे ये सारे शोभ दे मेरे लिए नहीं नए, करके दिखा कभी मुझे कोई कमाल बहुत मुख्तलिफ। वाह बहुत क्या खूब कहें बहुत खूब। क्या लगते हैं ये जो कामयाब हैं जैसे आप पर हबाब, लगते हैं ये जो कामयाब हैं जैसे आप पर हबाब, पेशे निगाह इन्हें न रख खून मिसाल मुख्तलिफ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और जिनको मिली बुलंदियां
देखी उन्होंने पस्तियां, वाह जिनको मिली बुलंदियां, देखिए देखी उन्होंने पस्तियां, होती है हर दफा मगर वजह जवाल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। बहुत ही मेरी अच्छा। बहार, बहुत शुक्रिया। मेरी बहार और खिजां मेरे लहू में है निहा, वाह मेरी बहार और खिजां मेरे लहू में है निहा, मरीख व अर्ज से मेरे है माह साल मुख्तलिफ। वाह वाह वाह। तूने कही सुनी सुनाई, मुझसे सुनी सुनाई सुन। तूने कही सुनी सुनाई, मुझसे सुनी सुनाई सुन। चाहे अगर नए जवाब पूछ सवाल मुख्तलिफ। मुख्तलिफ। बहुत अच्छा। और ऐसी चली दमे सहर, शाम तलक किया निहाल। वाह ऐसी चली दमे सहर, शाम तलक किया निहाल। बादे सबा से थी बहुत मौजे ख्याल मुख्तलिफ। मुख्तलिफ। बहुत करना है गर मुझे शिकार, ला तू जाल मुख्तलिफ। शातिर है तू अगर तो अब चल कोई चाल मुख्तलिफ। मुख्तलिफ। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अच्छी गजल थी, बहुत अच्छा। बहुत सुभान खूब अल्लाह, सुभान नासिर अल्लाह। साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब आसिर भाई। बड़ी अब हम अपने मुशायरे के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके। इख्तिताम का लम्हा करीब आ गया। हमारे आज के इस तारीख़ी मुशायरे के सदर मोहतरम असलम गुरदासपुरी का नाम सुनने के बाद इनका तारुफ मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, वाह। अगर हम आपकी शख्सियत, जमहूरी जिद्दोजहद और इल्मी और अदबी काम का अहाता करने लगें तो एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है। कोई जरूरत नहीं। आपका नाम और स्क्रीन पर चेहरा नमूदार हो जाए तो लोगों को आपके अंदर मौजूद एक दास्तान दिखाई देने लगती है। लिहाजा हम मजीद वक्त ज़ाय के बगैर आपके इन अशार से इस्तकबाल करेंगे और ये अशार के बाद मैं गुजारिश करूंगा सैयद ताहिर अब्बास साहब से कि चीफ ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से, PPPICSF के चीफ ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि मैं गुरदासपुरी साहब के खूबसूरत शेर जो मुझे पसंद है मैं वो सुनाऊंगा और उसके बाद माइक आप खुद ब खुद अपने हवाले आप ले लीजिएगा। मैं इनके सारे ही कलाम ऐसे हैं जो दिल में उतर जाते हैं, लेकिन ये मेरे कुछ दिल को ज़्यादा ही छू गए। मैं सदर की इजाज़त से आप ही के शेर आपकी नज़र करता हूँ। लोग कम ही सुनते हैं जिंदगी की बातों को, लोग कम ही सुनते हैं जिंदगी की बातों को, तुमसे पहले लोगों ने किसकी बात मानी है। मुस्तकिल जहालत ही हम पर राज करती है, मुस्तकिल जहालत ही हम पर राज करती है, हम में इल्म व हिकमत की किस कदर गिरानी है। मैं माइक हवाले करता हूँ सैयद ताहिर अब्बास बुखारी साहब के। ममनून हूँ सैफी साहब का कि उन्होंने मुझे ये एजाज़ दिया, वरना जितनी खूबसूरत से वो निज़ामत चला रहे थे और उन्होंने जितना प्यारा तारुफ कराया, पहले जुमले में ही बात ख़त्म हो गई थी कि असलम गुरदासपुरी साहब का नाम ही उनका तारुफ है। मैं उनको वेलकम करने और उनको ज़हमत देने से पहले चाहूँगा कि फारिग साहब के एक दो अशार उनको हदिया करूँ, और अगर उनकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल बिल्कुल फरमाएं। फारिग साहब कहते हैं कि जहाँ भी चाहो तुम इतरा के सांस लेते रहो, जहाँ भी चाहो तुम इतरा के सांस लेते रहो, मगर कभी न ये सोचो हवा तुम्हारी है। मुकर्रर। जहाँ भी चाहो तुम इतरा के सांस लेते रहो, मगर कभी न ये सोचो हवा तुम्हारी है। और फारिग साहब के इस इनकलाबी कलाम के साथ मैं उनको दावत फिक्र दूंगा जो बहुत मशहूर हुआ कि जुल्फ़िकार का लहू रायगा न जाएगा,
जुल्फ़िकार का लहू राएगा न जाएगा, बेगुनाह का खून है अपना रंग लाएगा। बेगुनाह का खून है अपना रंग लाएगा, और एक दिन जरूर वो इनकलाब आएगा जो बानियाने खाक व खून को खाक में मिलाएगा। मुकर्रर एक दिन जरूर वो इनकलाब आएगा जो बानियाने जुल्म को खाक में मिलाएगा। कातिलो जवाब दो, खून का हिसाब दो। क्या बात है, कातिलो जवाब दो, ये तो नारा खून का बन गया हिसाब था ना, ये तो उनकी मशहूर नज़म थी, इस पे उन्होंने 1.5 साल काटे ये थे। नारा बन गया था, ये तो नारा जी हाँ, था, जी हमारी हाँ, तहरीक था। जी हाँ। फरमाते हैं कि कौम के अताब से बच के जाओगे कहाँ, कौम के अताब से बच के जाओगे कहाँ, हश्र एहतिसाब से बच के जाओगे कहाँ, और कातिलो हिसाब से बच के जाओगे कहाँ, खूनी इनकलाब से बच के जाओगे कहाँ। कातिलो जवाब दो, खून का हिसाब दो। आखिरी बंद है उनका कि रास्तों के पेचो खम कोई दिन की बात है। रास्तों के पेचो खम कोई दिन की बात है, खुल रहेगा ये भरम कोई दिन की बात है। कोई दिन की बात है, ये जफाएं ये सितम कोई दिन की बात है। बहुत अच्छा। और फैसला करेंगे हम कोई दिन की बात है। कातिलो जवाब दो, खून का हिसाब दो। बहुत अच्छा। मैं तमाम शुरकाए महफिल का अपनी जगह मशकूर हूँ, लेकिन बतौर खास ममनून हूँ और दावत फिक्र देता हूँ, दावत कलाम देता हूँ जनाब असलम गुरदासपुरी साहब को, तो वो हमसे अपना कलाम हदिया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये असलम भाई अपना उनकी चेहरा गजल जरा जो थी, ये कैमरे तो को हमारी प्लीज। तहरीक का झंडा बनी हुई थी, फ्लैग बन गई हुई थी, बैनर बन गई हुई थी। असलम भाई अगर आपका कैमरा थोड़ा सा सेट हो जाए, लोग आपको देखना भी चाहते हैं। कि उस इश्क का क्या अंजाम हुआ। मेरी आवाज आ रही है ना? नहीं, आपका चेहरा भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि वो हम इसको रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं, प्लीज। वो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मेरा हेयरिंग अपना प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, आप अभी सही नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लीजिए बस, और थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप पीछे बैठ जाइए, क्योंकि मुझे पढ़ के बोलना है, क्योंकि आपकी आवाज अच्छी आ रही है। कैमरे से जरा मेरी पीछे आवाज ही आप सुनते रहिए जी, सुनते रहिए जी। अर्ज किया है कि उस इश्क का क्या अंजाम हुआ, ये सोच के दिल डर जाता है। उस इश्क का क्या अंजाम हुआ, ये सोच के दिल डर जाता है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो शख्स यहाँ मर जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। उस इश्क का क्या अंजाम हुआ, ये सोच के दिल डर जाता है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो शख्स जहां मर जाता है। क्या बात। और अहले जनू, इस दुनिया की तकदीर बदलना खेल नहीं। अहले जनू, इस दुनिया की तकदीर बदलना खेल नहीं। ये इश्क कोई आसान नहीं, इस इश्क में तो सर जाता है। अहले जुनू, इस दुनिया की तकदीर बदलना खेल नहीं, ये इश्क कोई आसान नहीं, इस इश्क में तो सर जाता है। मैं अहदे खदा से गुलशन की तकरीब का क्या अहवाल कहूँ। मैं अहदे खदा से गुलशन की तकरीब का क्या अहवाल कहूँ, जब उसमें गुल भी कांटों से दामन को मेरे भर जाता है। मैं अहदे खदा से गुलशन की तकरीब का क्या अहवाल कहूँ, जब मौसम गुल भी कांटों से दामन को मेरे भर जाता है। इस आदमी
खाकी के हमको इदराक से ये मालूम हुआ, इस आदमी खाकी के हमको इदराक से ये मालूम हुआ, इंसान कभी कुछ लम्हों में सदियों का सफर कर जाता है। वाह 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 वाह। इस आदमी खाकी के हमको इदराक से ये मालूम हुआ, इंसान कभी कुछ लम्हों में सदियों का सफर कर जाता है। इस कौम के फाते लोगों में कुछ राजन हैं, कुछ राबर हैं। इस कौम के फाते लोगों में कुछ राजन हैं, कुछ राबर हैं। जो माले गनीमत होता है वो इन सब के घर जाता है। बहुत अच्छा। जो माले गनीमत होता है वो इन सब के घर जाता है। और फिर है कि ये बात तो हम सब जानते हैं, इसमें तो कोई अभाम नहीं। ये बात तो हम सब जानते हैं, इसमें तो कोई अभाम नहीं। किन हाथों के मेहनत के इवज किन हाथों में जर जाता है, किन हाथों की मेहनत के इवज किन हाथों में जर जाता है। और आखिरी शेर है कि तुम उनसे कैसे जीतोगे जो मिलकर खेलते हैं असलम। तुम उनसे कैसे जीतोगे जो मिलकर खेलते हैं असलम। जो सच्ची बाजी खेलता है वो शख्स यहाँ हार जाता है। जो सच्ची बाजी खेलता है वो शख्स यहाँ हार जाता। एक दूसरी गजल है, न फिर वो रक्स सरेदार हुआ तेरे बाद, न फिर वो रक्स सरेदार हुआ तेरे बाद, न फिर वो इश्क का इजहार हुआ तेरे बाद। हर एक कौम का रहबर बरहना सर है यहाँ, न कोई साहब दस्तार हुआ तेरे बाद। वाह क्या। हर एक कौम का रहबर बरहना सर है यहाँ, न कोई साहब दस्तार हुआ तेरे बाद। न कोई साहब इज्जो शरफ हुआ तुझसा, न कोई साहब किरदार हुआ तेरे बाद। न कोई साहब इज्जो शरफ हुआ तुझसा, न कोई साहब किरदार हुआ तेरे बाद। ये देखते ही नहीं आंख बंद है सबकी, न कोई दीदा बेदार हुआ तेरे बाद। ये देखते ही नहीं आंख बंद है सबकी, न कोई दीदा बेदार हुआ तेरे बाद। वो सिलसिला जो था तेरी रहनुमाई का, वो सारा सिलसिला बेकार हुआ। वो सिलसिला कि जो था तेरी रहनुमाई का, वो सारा सिलसिला बेकार हुआ तेरे बाद। तेरे बाद और तेरे जुनू की तरह इस जहां में जुल्मत से न कोई बरसरे पैकार हुआ तेरे बाद। तेरे जुनू की तरह इस जहां में जुल्मत से न कोई बरसरे पैकार हुआ तेरे बाद। और चुका दिए गए सौदे हमारी उल्फत के, न कोई कौल न इकरार हुआ तेरे बाद। चुका दिए गए सौदे हमारी उल्फत के, न कोई कौल न इकरार हुआ तेरे बाद। और कोई भी तेरी शहादत का इंतकाम न ले, इस एक बात पे इसरार हुआ तेरे बाद। कोई भी तेरी शहादत का इंतकाम न ले, इस एक बात पे इसरार हुआ तेरे बाद। न फिर किसी से हुए मेरे बामो दर तामीर, न तुझसे फिर कोई मैमार हुआ तेरे बाद। क्या कह रहे क्या। न फिर किसी से हुए मेरे बामो दर तामीर, न तुझसे फिर कोई मैमार हुआ तेरे बाद। और तुम्हारे बाद तो हर शख्स बन गया आशिक,
تمہارے بعد تو ہر شخص بن گیا عاشق، نہ کوئی عشق کا معیار ہوا. تیرے واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا تمہارے بعد کہنے. تو ہر شخص بن گیا واہ عاشق، واہ واہ واہ. نہ کوئی عشق کا معیار ہوا. کیا بات ہے کیا بات. تیرے بعد وہ کام جس کے لیے تو نے دی تھی جان اپنی، وہ کام اور بھی دشوار ہوا. تیرے بعد کام جس کے لیے تو نے دی تھی جان اپنی، وہ کام اور بھی دشوار ہوا. کیا کہنے. تیرے بعد اور ہر ایک کوچہ و بازار بن گئے مقتل، یہ کیسا خون کا بیپار ہوا. تیرے بعد ہر ایک کوچہ و بازار بن گئے مقتل، یہ کیسا خون کا بیپار ہوا. تیرے بعد اور دلوں کے فاصلے اتنے زیادہ بڑھتے گئے، دلوں کے فاصلے اتنے زیادہ بڑھتے گئے، نہ پھر یہ راستہ ہموار ہوا. تیرے بعد نہ پھر وہ رقص سرےدار ہوا. تیرے بعد نہ پھر وہ عشق کا اظہار ہوا. تیرے بعد اگر کہیں تو ایک غزل اور سنا دوں. جی جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو. جی جی ارشاد. جی. جو تیرے عہد کے سرمایہ غم ہیں ہم ہیں. جو تیرے عہد کے سرمایہ غم ہیں ہم ہیں. تیرے در پر سر تسلیم جو خم ہیں تو تیرے عہد کے سرمایہ غم ہیں ہم ہیں. تیرے در پر سر تسلیم جو خم ہیں ہم ہیں. آج تک جن پہ تیری نظر عنایت نہ ہوئی، جو تیری بد میں آتے بڑے کم ہیں. آج تک جن پہ تیری نظر عنایت نہ ہوئی، جو تیری بد میں آتے بڑے کم ہیں ہم ہیں. اور شعر سنیے کہ عشق میں آرے چلا کرتے ہیں جن کے سر پر، عشق میں آرے چلا کرتے ہیں جن کے سر پر، ہاتھ میں جن کے بغاوت کے علم ہیں ہم ہیں. عشق میں آرے چلا کرتے ہیں جن کے سر پر، ہاتھ میں جن کے بغاوت کے علم ہیں ہم ہیں. وہ آسمانوں سے وحی ہوتی ہے جن پر نازل، آسمانوں سے وہی ہوتی ہے جن پر نازل، وہ کہ جو صاحب تقدیس قلم ہیں ہم ہیں. مقرر. آسمانوں سے وہی ہوتی ہے جن پر نازل، وہ کہ جو صاحب تقدیس قلم ہیں ہم ہیں. اور زندگی برسرے پیکار ہے ظلمت کے خلاف. زندگی برسرے پیکار ہے ظلمت کے خلاف، ظلم ہے اور زمانے کے علم ہیں ہم ہیں. اور شعر سنیے کہ جن کا ہوتا ہی نہیں اپنی تمنا کا وجود. شعر غور سے سنیے کہ جن کا ہوتا ہی نہیں اپنی تمنا کا وجود، جو تیرے عشق کی توقیر میں ضم ہیں ہم ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات. جن کا ہوتا ہی نہیں اپنی تمنا کا وجود، جو تیرے عشق کی توقیر میں ضم ہیں ہم ہیں. اور کیسی دست جنوں میں ہے ہمارا رب، کیسی دست جنوں میں ہے
ہمارا راہبر ہر طرف کیس کے ہی نقش قدم ہیں، ہم ہیں ہر طرف کیس کے ہی نقش قدم ہیں، ہم ہیں اور جلوہ حسن ہمیں دل سے جمع رکھتا ہے، جلوہ حسن ہمیں دل سے جمع رکھتا ہے، عشق کے جذبہ پہم میں جو دم ہے، جلوہ حسن ہمیں دل سے جمع رکھتا ہے، عشق کے جذبہ پہم میں جو دم ہے، اور ہم ہیں اور شعر سنیے کہ پہلے کعبے سے جو نکلے تھے اور صنم پتھر تھے، کیا پہلے کعبے سے جو نکلے تھے صنم پتھر تھے، پہلے کعبے سے جو نکلے تھے صنم پتھر تھے، آج موجود جو کعبے میں صنم ہیں ہم ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ دوبارہ آتا ہو، دوبارہ بہت نوازش۔ وہ پہلے کعبے سے جو نکلے تھے صنم پتھر تھے، آج موجود جو کعبے میں صنم ہیں ہم ہیں، اور لاکھ دلکش سہی شاہوں کے زمرد کے سبو، لاکھ دلکش سہی شاہوں کے زمرد کے سبو، جو حریفان ثنا خوانی جم ہیں، ہم ہیں، لاکھ دلکش سہی شاہوں کے زمرد کے سبو، جو حریفان ثنا خوانی جم ہیں، ہم ہیں۔ اور آخری شعر سنیے کہ شیخ تو فرقہ تفریق حرم ہے اسلم، شیخ تو فرقہ تفریق حرم ہے اسلم، وہ کہ جو باعث ناؤس حرم ہیں ہم ہیں، وہ کہ جو باعث ناموس حرم ہیں، شیخ تو فرقہ تفریق حرم ہے اسلم، وہ کہ جو باعث ناموس حرم ہیں ہم ہیں، تیرے جو تیرے عہد کے سرمایہ غم ہیں ہم ہیں، ہم ہیں، تیرے در پر سر تسلیم جو خم ہیں ہم ہیں۔ بہت بہت کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ صدر محفل، صدر مشاعرہ، ہمارے عظیم ساتھی انقلابی ساتھی محترم اسلم گرداسپوری صاحب، آپ تمام شعراء کا میں فردن فردن شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جاوید آفتاب صاحب، میری طرف سے بھی کر دیجئے۔ جی، شیراز راج صاحب، ڈاکٹر ثروت زہرا، ریاض رحیم صاحب ممبئی سے، ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب، اور محترمہ کلثوم زیب صاحبہ، ہمارے بھائی، بڑے بھائی محترم باسر کاظمی صاحب، اور دیگر جتنے بھی، خاص کر ہمارے ساتھ خالد حمید فاروقی بھی موجود تھے، ہمارے سینئر صحافی، ادبی ذوق رکھتے ہیں، اور اسی لیے وہ ہمارے ساتھ رہے شروع سے آخر تک، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے تمام ٹیم ممبران، ہمارے افضال حسین انقلابی صاحب، آپ کے ٹیکنیکل سپورٹ کا شکریہ، اور آپ نے بھی نظامت میں ہمارا ساتھ دیا، اور ہمارے چیف آرگنائزر طاہر عباس صاحب، آخری کلمات میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی شکریہ ادا کر دیں، اور صدر محترم نے بھی سب کا شکریہ ادا کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ سائننگ آف کریں اپنے کلمات سے۔ انتہائی ممنون ہوں، ہماری چھوٹی سی درخواست پر آپ لوگوں نے اتنے خوبصورت مشاعرے کیا، اور بطور خاص اوورسیز سے جو ہمارے دوستوں نے اس میں شرکت کی، باسر کاظمی صاحب کا انتہائی ممنون ہوں، تمام دوستوں کا، جاوید صاحب کا، اور صاحب صدر کا بالخصوص، اپنی ٹیکنیکل ٹیم کے سمیت 4 اپریل کو ہونے والے گڑی خدا بخش کے مشاعرے تو جو ہوگا اس کی ابتدا آج ہم نے اس لیے کی
کہ آپ کے یہ کلام ترانہ 4 اپریل تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. تمام دوستوں کو ان کا کلام ہدیہ کیا جائے گا ایڈیٹنگ کے بعد. اور اس آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ فارغ نہیں ہے کوئی اردو پر ہی منحصر. مقرر سر ذرا تھوڑا سا ڈسٹورشن ہو رہی ہے, دوبارہ پڑھیے گا. فارغ نہیں ہے کوئی اردو پر ہی منحصر, ہر پل ہوس جہاں میں ہمارا رقیب ہے. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. خداوند کا آپ کی محبتوں کا احسان مند ہوں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی, یہ سلسلے چلتے رہیں گے. اور میں بےحد ممنون ہوں, آپ نے بڑے سکون سے 2 گھنٹے کی پروگرام. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. مہربانی. تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ.